Hello students, in our previous lecture or you can say in our previous video, we have completed alpha decay. Now the second radioactive rays which is emitted from an radioactive element is beta decay. Today we will discuss beta decay in detail. Let us first understand what happens in beta decay. Beta decay may be defined as the spontaneous decay process in which the mass number of nucleus remains unchanged, but the atomic number changes is called beta decay. यानी कि बीटा डीके में क्या होता है, जिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से डीके होगा, बीटा डीके होगा, उसका डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर चेंज कर जाएगा. अब किस स्थिति में चेंज करेगा और एटॉमिक नंबर क्यों कांस्टेंट रहेगा, उसको अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. अब बीटा डीके में 3 मोड्स ऑफ डीके होता है. 3 मोड होते हैं बीटा डीके में. So we can say that depending upon the 3 modes of decay, the beta decay is known as. बीटा डीके में 3 तरह का बीटा डीके होगा. एक होता है बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, दूसरा होगा बीटा प्लस डीके और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर. Now let us understand what is beta minus decay, then beta plus decay, and lastly as electron capture. So first we will start beta minus decay by the emission of an electron. In beta minus decay, what happens? An emission of an electron takes place. Beta minus decay by the emission of an electron. कैसे इलेक्ट्रॉन होगा? In this decay, the emission of beta minus particle from an unstable nucleus takes place, whose neutron to proton, try to remember it, whose neutron to proton ratio is too high. Neutron to proton ratio is too high. It is an ordinary electron. Beta minus decay में जो decay होता है ना, that is an ordinary electron, which is denoted by E minus. And this electron, in the case of beta minus decay, is also called negatron decay. In beta minus decay क्या होता है, इसको समझो ठीक से. A neutron within the nucleus, कौन सा न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर में है, changes into a proton, an electron E minus and an electron antineutrino. Electron antineutrino is denoted by nu E bar. अब सवाल उठता है न्यूट्रॉन काहे चेंज करेगा? तो न्यूट्रॉन चेंज करता है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है स्टेबिलिटी की ओर आने के लिए. कौन सा न्यूट्रॉन चेंज करेगा पहले, इट कैन नॉट बी नोन. इट डिपेंड्स अपॉन द चांस और प्रोबेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन एंटीन्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो. तो जो इलेक्ट्रॉन चेंज किया ना प्रोटॉन में, वह प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा. द प्रोटॉन रिमेन्स इन द न्यूक्लियस, जबकि while the electron and the electron antineutrino both leaves the nucleus. दोनों न्यूक्लियस से निकल जाएगा. न्यूट्रॉन चेंज किया प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन एंटीन्यूट्रिनो में, तो प्रोटॉन रह जाएगा न्यूक्लियस में ही
और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वही बीटा माइनस डीके और इलेक्ट्रॉन है, बोथ लीव्स द न्यूक्लियस। सिंस ए न्यूट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय ए प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन की संख्या घट जाएगा न्यूक्लियस में, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? The atomic number of the new nucleus increases by 1 unit and mass number remains constant. Mass number में तो कोई चेंज नहीं हुआ, न्यूट्रॉन कन्वर्ट कर गया प्रोटॉन में, प्रोटॉन रह गया और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकल गया, तो मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए बीटा माइनस डीके is represented, or you can say beta minus emission is represented as, this is our parent nucleus which undergoes beta minus decay, mass number A, proton number Z. When it decays into beta minus, it becomes daughter nucleus, atomic number increased by 1, mass number remains constant, plus electron or negatron or beta minus decay plus electron anti neutrino। और न्यूट्रॉन का कन्वर्शन कैसे हुआ? ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूट्रॉन चेंज कर गया किसमें? प्रोटॉन में, प्लस E माइनस माने इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। बीटा माइनस डीके का एग्जांपल, कार्बन having atomic number 6, mass number 14 is a radioactive element. When it decays, it becomes nitrogen 714, beta minus or electron or negatron plus electron anti neutrino. This is one of the examples of beta minus decay. The second type of beta decay is beta plus decay, which is just opposite to the beta minus decay. It is also called positron emission, that is electron emission. It is positron emission. By the emission of a positron, it happens by the emission of a positron. इस decay में क्या होता है? In this decay, the emission of beta plus particle from an unstable nucleus takes place whose proton to neutron ratio is too high. देखो बीटा माइनस डीके में क्या था? जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई होता था उसे बीटा माइनस डीके। यहां जस्ट उल्टा, whose proton to neutron ratio is too high. It is simply a positron. positron को हम E प्लस से डिनोट करेंगे, इसलिए नाम पड़ गया पॉजिट्रॉन डीके। जैसा काम है वैसा नाम है। इसमें होता क्या है? यहां जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है इन बीटा प्लस डीके ए प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन, positron and an electron neutrino, जिसको न्यू ई से डिनोट करेंगे। वहां इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, एक पढ़ो दूसरा भी हो, याद हो जाना चाहिए, जस्ट उसको उल्टा कर दो, है ना। अब इसमें क्या होगा? दिस अकर्स ओनली विथ ए बाउंड प्रोटॉन। याद रहे, यह फ्री प्रोटॉन से पॉसिबल नहीं है। बाउंड प्रोटॉन मीन्स the proton which is inside the nucleus, वहीं से possible होगा। And free proton cannot undergo beta plus decay. Free proton cannot undergo beta plus decay. यह बाउंड प्रोटॉन से ही it is possible. A proton changes into neutron, positron and an electron antineutrino. This occurs only with a bound proton. अब सवाल उठता है कि फ्री प्रोटॉन से क्यों नहीं होगा? फ्री प्रोटॉन से इसलिए नहीं होगा ना
कि फ्री न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 939.5 MeV. It is greater than the mass of a proton. प्रोटॉन का मास होता है 938.2 MeV. तो इसीलिए इस पॉइंट को नोट करना जरूरी है कि दिस बीटा प्लस डीके occurs only with a bound proton. Free proton cannot undergo beta plus decay. Free electron cannot undergo beta plus decay. Why? Because a free neutron is more massive than a free proton. न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है. न्यूट्रॉन का मास होता है करीबन 939.5 MeV और प्रोटॉन का मास होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 938.2 MeV. इसलिए फ्री न्यूट्रॉन फ्री प्रोटॉन डीके नहीं कर सकता है, बीटा प्लस डीके नहीं प्रोड्यूस कर सकता है. उसका रीजन यहां पर दिया गया. अच्छा, बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि प्रोटॉन चेंज कर जाता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में. तो बीटा पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो तो निकल गया न्यूक्लियस से बीटा माइनस डीके के रूप में, लेकिन न्यूट्रॉन जो हुआ प्रोटॉन चेंज करने के बाद वह तो रह गया न्यूक्लियस के अंदर ही. तो क्या हुआ, प्रोटॉन नंबर एक घट गया ना, न्यूट्रॉन नंबर बढ़ गया. तो क्या होता है कि द न्यूट्रॉन रिमेन्स इन द न्यूक्लियस, रह गया, while the positron and the electron neutrino both leave the nucleus. अब since a proton is replaced by a neutron, तो क्या हो गया मेरा, the atomic number of the new nucleus decreases by 1 unit. घट जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो हमको एटॉमिक नंबर देता है. तो प्रोटॉन तो चेंज कर दिया ना न्यूट्रॉन में, तो एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यू न्यूक्लियस क्या हो गया, डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट. जबकि बीटा माइनस डीके में इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट होता है एंड मास नंबर रिमेन्स सेम. प्रोटॉन चेंज किया तो न्यूट्रॉन हो गया, तो मास नंबर तो वही ना रह जाएगा. और याद करो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, वहां पर मास नंबर जो प्रोटॉन नंबर जो है वह बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है. सो बीटा प्लस इमिशन इज रिप्रेजेंटेड एज, ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियस जो डिके करेगा, डॉटर न्यूक्लियस मास नंबर रिमेन सेम, प्रोटॉन नंबर एक घट गया क्योंकि प्रोटॉन तो कन्वर्ट कर गया एक प्रोटॉन और निकल गया पॉजिट्रॉन in the form of beta plus decay and electron neutrino. बीटा प्लस इमिशन का एग्जाम्पल ये है, सोडियम 1122 is a radioactive element. It decays by beta plus emission and the daughter nucleus becomes neon. मास नंबर एक घट गया, प्रोटॉन नंबर घट गया तो हो गया 10, मास नंबर वही रहा. और कन्वर्सन के बाद बीटा प्लस या कहो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बाहर निकल गया न्यूक्लियस से डीके होने के बाद. थर्ड मोड ऑफ बीटा डीके को कहलाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर. जैसा नाम है वही होता है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है ऑर्बिट से. शॉर्ट में इसको ईसी कहते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, सी फॉर कैप्चर. यह कब होगा जी, it happens by the capture of an orbital electron. एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है.
It occurs when a proton inside an unstable nucleus captures an orbital electron from its nearest atomic energy shell. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट्स का फिर कई सेल होते हैं, तो के शेल जो होता है, के शेल वह नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है, तो उसका बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ. द इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल आर मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन दोज इन एनी अदर शेल. इसीलिए द प्रोबेबिलिटी that the captured orbital electron will be from the K shell is much greater than that for any other cell. इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा K शेल से कैप्चर करने का. यही कारण है क्योंकि K शेल नियरेस्ट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है न्यूक्लियस के द्वारा. Therefore, it is also called K capture. Electron capture is also named as K capture. In this K capture क्या होता है? प्रोटॉन चेंजेस इनटू ए न्यूट्रॉन. जो न्यूक्लियस कैप्चर किया, न्यूक्लियस का प्रोटॉन कैप्चर किया इलेक्ट्रॉन को K सेल से, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को, तो वह प्रोटॉन क्या हो जाएगा? चेंज करके बन जाएगा न्यूट्रॉन. तो मास नंबर इसका भी घट जाएगा ये इनटू ए न्यूट्रॉन बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. वह न्यूट्रॉन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के रूप में क्या निकलेगा? कैप्चर के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. Here also the atomic number of the daughter nucleus is 1 unit less than that of the parent nucleus. जैसा कि तुम्हारा बीटा प्लस डीके में होता है. While the atomic mass number remains same. एटॉमिक मास नंबर जो है वो तो सेम रहा, यानी इसका इक्वेशन और बीटा प्लस इक्वेशन करीब करीब वैसे ही रहता है. बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है और इसमें खाली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है, लेकिन मास नंबर घट जाता है, मास नंबर कांस्टेंट रहता है और मास नंबर कांस्टेंट रहता है और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से घट जाता है. तो इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि सिंस इट इज इक्विवेलेंट विथ बीटा प्लस डीके, सो ए न्यूक्लियस may decay by more than one mode. The electron capture decay is energetically more probable than beta plus decay. It is more probable since there is no beta particle emission in electron capture decay. Electron capture decay is represented as, इसको मिला देना अपना बीटा प्लस डीके से. इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके को हम करते हैं पेरेंट न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर A, proton number Z. It captured 1 orbital electron from K cell. The probability is in K cell of capturing the electron from K cell is more. It becomes daughter nucleus. Atomic number less than 1, mass number remains same, plus electron neutrino. That is, proton captured 1 electron becomes neutron, a small n. Write it here, a small n. Proton plus electron it becomes, decays energetically more probable, is equivalent. Atomic number of daughter nucleus is 1 unit here. You see here proton changes into a neutron n plus antineutrino. Proton captured electron from K cell, it becomes neutron plus electron neutrino. Example of electron capture is Hg, means mercury.
having mass number 80, mass number 197, atomic number 80, it becomes after electron capture gold Au 79, atomic number, mass number remains same 197 plus electron neutrino. Some radioactive nuclides decay by more than one process. कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड है जो कि एक प्रोसेस से ज्यादा प्रोसेस में डीके करता है, या कहे एक मोड से ज्यादा मोड में डीके करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है वह है कॉपर का. कॉपर का मास नंबर है 64 और प्रोटॉन नंबर है 29. यह एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड है. यह डीके करता है, डीकेज बाय बीटा माइनस इमिशन, कितना 38% ऑफ द टाइम, और फिर बाय बीटा प्लस इमिशन 19% ऑफ द टाइम. टाइम माने गुना, कितना गुना. एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर 43% ऑफ द टाइम एज शोन बिलो. माने कॉपर 2964 का डीके बीटा माइनस में भी होता है, बीटा प्लस में भी होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के रूप में भी होता है. बीटा माइनस के रूप में 38% प्रोबेबिलिटी है, चांस है, और बीटा प्लस में 19% कम है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर है 43%. माने ज्यादा चांसेस होता है, ज्यादा परसेंटेज है बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन इमिशन का. और इसको हम फिगर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉपर 2964, और यह जब डीके कर रहा बीटा माइनस में 38% डीके करता है तो इट बिकम्स जिंक. मास नंबर देखो बढ़ गया, सॉरी मास नंबर कांस्टेंट, प्रोटॉन नंबर बढ़ गया. क्यों प्रोटॉन नंबर बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में. और बीटा प्लस 19% करता है, प्रोटॉन नंबर घट गया 28. क्यों घटा जी? क्योंकि प्रोटॉन यहाँ कन्वर्ट करता है न्यूट्रॉन में, तो घट जाता है 64, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के रूप में 43% होगा. यह भी निकल में ही चेंज हो जाएगा. प्रोटॉन नंबर 28, मास नंबर 64, दैट इज रिमेन सेम. यही होता है बीटा डीके में. 3 तरह का इसका मोड होता है डीके करने का. दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा डीके. जिस तरह से हम लोग एनर्जी रिलीज्ड एंड इन अल्फा डीके निकाले थे ना, कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसी तरह से सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ना है एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा डीके. दैट्स